Are you someone who gets a job and then within 1 week or couple of months or 3 days you start feeling that you're in the wrong spot? Has that happened to you ever? Because there was a point that I used to suffer from it constantly. I will be working at a place, then I would love to exit it because everything is wrong, and I either don't like the boss or don't like the colleague, I don't like the work, I don't like the client, computer, not process the data, something or the other thing would be happening, and I would love to quit the job, which I did. Then I started to look for another job, learning from the mistakes of this job, but eventually again, जब हम नए जॉब में जाएंगे, I will always feel the same way, the same feeling of suffocation, the same feeling of being stuck, the same feeling of helplessness, and that cycle just went on and on and on. Either if the boss is great in the new job, some colleague would be really annoying, they'll start playing politics. If the colleagues and everyone is nice, the policies will not work for you. You don't get leave to go to your sister's wedding or something like that. So that wouldn't work eventually. If everything is okay, you get allergy with the water, और कुछ तो पेट ख़राब हो जाएगा वहाँ के कूलर के पानी पीने से, या फिर अगर बाकी सब कुछ भी ठीक है तो बैक इंजरी हो गई, तो मेरे लाइफ में मेरे को हमेशा ये प्रॉब्लम आई कि मैंने इसे कोशिश की कि मुझे इस जॉब में टिकना है लॉन्ग पीरियड के लिए, पर कुछ ना कुछ होके ऐसा ही हो जाता था कि हो ही नहीं पा रही जॉब, कुछ ना कुछ रीज़न आ ही जाएगा. आज तक के लाइफ में मैंने लॉन्गेस्ट जॉब कोई की है तो वो है 8 months. या आप सुनोगे तो आपको लगेगा वाटर कंप्लेनर, उसमें कुछ है भी है ना, दिमाग ठीक नहीं है भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन, वाई शी नॉट एबल टू कंटिन्यू. बट द आंसर लाइज इन द फीलिंग ऑफ not being worth of what you want. I never wanted a job. I wanted to always be my boss. I wanted to always do something of my own. I always wanted to create something of my own, an identity for the starters. And these jobs were just making me assistant of somebody, auditor of somebody, that just didn't resonate with me a lot. It's not like I used to laze around or I was bad at my job. I'll not perform. I will. If you tell me 100 things, I will do 110 things by default. But मेरे को अंदर से जो खुशी मिलनी चाहिए ना, वो कभी नहीं मिली. सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ बीइंग वर्दी कभी नहीं आया. एंड आई थॉट दैट फाइंडिंग समथिंग एल्स, if I overcome the few faults that I can clearly see in this job, if I overcome that in the next job, maybe I will feel that. Until I realize that वो feeling मुझे कभी नहीं आ सकती unless I train myself to feel it internally. मेरी सेल्फ वर्थ के रिफ्लेक्शंस मुझे सबसे पहले अपने अंदर आने चाहिए, तभी मुझे वो अपने बाहर की दुनिया में दिख सकते हैं. और ये समझने में मेरे को बहुत टाइम लगा. मुझे हमेशा लगता था वो नहीं, मेरे पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक और डिग्री होनी चाहिए. अगर सारे लोगों के पास बैचलर्स है तो मेरे पास मास्टर्स होनी चाहिए, या फिर कोई एडवांस कोर्स किया होना चाहिए. ऐसे सब फालतू सर्टिफिकेट मैंने बस इकट्ठे कर रखे हैं जिसका आज तक मेरे लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. और ये सब अपने आप को बार बार चेज़ करना किसी एक अनदर लेवल. आई एम नॉट सेइंग, सी डोंट टेक मी रॉन्ग, इम्प्रूव करते रहना, अपने आप को बेटर बनाना, ये सब चीज़ आपको करनी ही चाहिए फॉर श्योर. बट आपको अगली लेवल को तभी चेज़ करना चाहिए जब आपको लगता है कि आपका करंट लेवल में आपने कुछ अचीव किया है. अगर आप पहले से ही अपने आप को बोल रहे हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, सो लेट मी डू +10. इफ आई एम नॉट गुड इनफ, इवन इफ आई डू +10, लेट मी डू +10, +20, +30 until I feel good enough. That's never going to happen for you. When you're making each and every small progress, you need to book that acknowledgement in your own head that yes, I did the better thing. I did keep a promise to myself. For example, if you want to lose 5 kgs and you decide I want to walk every day for 1 hour, even if today I walk 15 minutes, good enough. 10,000 steps नहीं हो पाए, 4,000 तो हुए ना. अक्नॉलेज कि 0 से 4,000 तक किए हैं. वो परफेक्शनिज्म चेज़ करते रहेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा. और ये हर चीज़ मैंने अपने हर जॉब में करी हुई है. परफेक्शन को चेज़ करना,
बार बार अपने आप को ये फील कराना कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लिविंग अप टू माई पोटेंशियल. ऑफ कोर्स यू कैन हैव एम्बिशियस गोल्स इन लाइफ. Please don't take me wrong. Please, I'm all for ambition and I'm all for improvement. I'm from grading the lifestyles. But अगर आप एक अपने आप की स्किन में कॉन्फिडेंट फील करते हो, वर्दी फील करते हो, बेस्ड ऑन वेयर यू आर, ग्रेटफुल फील करते हो कि आप एक पोजीशन में हो कि आप एफर्ट लगा सकते हो कि आप बेटर करो, आप अच्छा करो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो अपने स्टैंडर्ड में, अपने परफॉर्मेंस में. आपको हमेशा एक एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करनी है. अगर आपको टॉप परफॉर्मर बनना है, आपको एवरी डे बेसिस का जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो ऊँचा करना है. यही सारे एथलीट्स करते हैं. विराट कोहली करता है, नीरज चोपड़ा करता है, सानिया मिर्ज़ा करती थी. एक मैच जीतना ज़रूरी नहीं होता. आपको एक एवरेज मेंटेन करनी है कि आप कम से कम 50-60 रन बनाते ही बनाते हैं, रादर दैन स्कोरिंग 2 सेंचुरीज इन 20 मैचेस. समझे? तो उससे बेटर आप एक टीम प्लेयर बनते हो. तो ये सारे माइंडसेट चेंज आप करने लगोगे व्हेन यू एक्चुअली एक्नॉलेज दैट यू belong to this ecosystem, you belong to be, you deserve to be here, belong to this goal. Okay, you're not some imposter, you're not somebody who is just trying random things. आप वो नहीं हो जो एक स्विमिंग करना जानते हो और अचानक उड़ने लगे. आप वो हो जहाँ पे बिलोंग करते हो और आप डेली इम्प्रूव करोगे. वो पेशेंस का गिफ्ट आप अपने आप को दोगे, तभी आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगी. वरना आप बार बार उसी लूप में फंसे रहोगे, बार बार किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन को चेस करते रहोगे. कोई भी चीज़ आपके लिए कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी अनलेस यू डिसाइड टू बी हैप्पी. आई नो इट्स लिटिल हार्श टू एक्सेप्ट. इनिशियली मुझे भी बहुत टाइम लगा. आई यूज्ड टू डिनाई, आई यूज्ड टू कॉल इट लिमिटिंग बिलीफ, बट नो 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 नो, इट्स नॉट लिमिटिंग बिलीफ. इट्स द मोस्ट लिबरेटिंग बिलीफ यू कैन हैव. So think about it and let me know, have you ever felt like that? Also, I'm new to this channel, not new to this channel, but I'm new to making content. So can you just tell me what kind of content I can make so that it becomes more useful to you? Because I want to do this. I love to share information. I love to overshare also. So feel free to comment below what you want to see next. Bye.